and I'll start sharing the screen now. सबको Okay, sir. recording पहुंच जाएगी because most of them are interested only in that what you call certificate. Yes, very Learning much right, sir. learning में कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं learning. तो देखिए मेरी स्क्रीन आपको अब दिखाई दे रही होगी पूरी. Yes, sir. Going to be start. Yeah, it is there. Yes, sir. Now it's visible, sir. Full visible. Yeah. Yes, sir. Full देखिए visible. कल हमने यहाँ तक छोड़ा था कि वैल्यूज आज ज्यादा नहीं है लंबा 20-25 मिनट का होगा 7 बजे 7:05 तक खत्म हो जाएगा. आई told you one thing कि प्री स्कूल is the right age to start with instilling the values in your kids. And all the parents, they want to create or instill a big picture value in their kids as they go and explore the world outside. आप कब तक उनकी देख रेख करेंगे? 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल तक ग्रेड स्कूल में जाने के बाद दे आर आउट ऑफ योर व्यू. सवेरे छोड़ आएंगे आप स्कूल में. अभी प्री स्कूल में भी ये होता है कि आप 12-1 बजे ले आते हैं. उसके बाद वही 2:30-3 बजे तक का चल जाएगा मामला. सो देयर आर कॉमन वैल्यूज and most common values the parents strive for, and how experts recommend you to approach each of them with your little ones before they hit the double digit age. 10 साल का होने से पहले पहले ये इंस्टिल हो जानी चाहिए. मैं ब्रीफ में आपको 6 7 8 बताऊंगा, but there are hundreds and hundreds of them and you can continue with them. जब भी आपको मेरे को I will be sending you a sort of booklet also. What are the different values? इसी पीपीटी का आपको पीडीएफ भी भेजूंगा so that later on इसमें क्या क्या है और 4 5 10 वो भी आपको मिल जाएंगे. First is accountability. You see, accountability is very crucial for the child to learn, which means whether it is right or wrong in everyday life, the child should be accountable to accept. If it is right, he may not speak. Who has done it? Yes, ma'am. अगर अच्छा है तो obviously all the students will raise their hands. But when if it is wrong, then the accountability comes into play. That is major important role of the accountability. If you have gone wrong somewhere, you should raise your hand. Yes, ma'am, this is my mistake. I'm sorry. So, but how can this be done? This can be done back at home by the parents. अभी आप देखिए ना, एज ए टीचर एज ए पेरेंट आपने आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज आपके बच्चों के अंदर हों. एज ए पेरेंट you expect the parent also to instill these values in their kids, but they don't take care even. और फिर बाद में आते हैं कि मैडम ये तो हमारा लड़का तो बच्चा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया, तमीज नहीं सिखाई, मैनर्स नहीं सिखाए, एटिकेट्स नहीं सिखाई, वैल्यूज नहीं सिखाई. सारी जिम्मेदारी हमारी है. They don't take the responsibility that this is their responsibility. I'll केस बाय केस स्टडी लेनी पड़ेगी हमको. केस बाय केस बेसिस पे हमको ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि what exactly is right and what is not. Say for example, a child throws something at you or the stuffed toy. How you should react? Most of the times the parents start shouting, "Hey, क्या किया? बैठो इधर." No, you sit quiet, have patience, count till 10, और बच्चा हंसेगा हो सकता है इस समय. आप बिल्कुल शांति के साथ विदाउट एनी फेशियल एक्सप्रेशन स्टार्ट स्टेयरिंग, एंड देन आफ्टर वंस ही कूल्स डाउन, बेटा अगर ये मेरे को लग जाता तो चोट नहीं लगती, और अगर डैडी को या मम्मी को चोट लग जाती तो फिर आपको कैसा लगता. ओवर हेयर अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एम्पैथी. वी आर बेसिकली ऑलवेज आफ्टर एम्पैथी. अगर एक बार बच्चों ने एम्पैथी सीख ली
What exactly is empathy? अगर मैं आपको फेंकूं और आपको लग जाए, चोट लग जाए, फिर क्या होगा? So, as your child matures into the grade school and beyond, understanding the reasoning behind these values help them hold accountable. To be accountable, they will be accountable only when you start instilling this particular value, empathy, with accountability in the preschool age. 2 साल 3 साल का होता है. अच्छा ठीक है, आप दूध नहीं पियोगे तो हम भी बात नहीं करेंगे. जनरली पेरेंट्स पहले ऐसे ही करते थे, सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स. और जो कॉम्प्लिकेटेड होते थे, अच्छा नहीं पिएगा नहीं पिएगा, उसका कान मरोड़ दिया. और 2 साल के बच्चे का कान मरोड़ने से वो दूध तो पी लेगा, बट वेयर इज द एम्पैथी गॉन? कॉन्सिक्वेंसेस. उसको ये पता चलेगा कि किसी चीज, किसी रूल को ब्रेक करने से इसका कॉन्सिक्वेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा. देन आउट ऑफ फियर एंड फोर्स ही विल स्टार्ट फॉलोइंग द रूल, बट दैट इज रॉन्ग. फिर अगर ये अकाउंटेबिलिटी आपने केस बाय केस बेसिस पे इसको उसके अंदर इंस्टिल कर दिया, then the teaching kids how to problem solve with their values, they will automatically learn. Next is communication. You see, सबसे पहला जो चैनल होता है कम्युनिकेशन, दैट इज बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, बैक एट होम. स्कूल में नहीं. स्कूल में तो लेटर स्टेजेस में दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एंड देन दे स्टार्ट putting up the things together to express themselves. और ये communication is very important. I'm telling you, my next webinar on 12th is taming the tantrums. अगर बच्चे को कम्युनिकेशन आपने 2 साल के अंदर नहीं सिखाना शुरू किया या सिखाया, तो आई एम टेलिंग यू, they will never be able to communicate with their parent as to their what they want, what they need, what is their concern. This is very important value, communication. Because with the communication, you develop or you build mutual respect for each other. And there should be openness between you and your kid. आपके बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, यू शुड एक्सप्रेस इन वर्ड्स. देखिए, जब बच्चा शुरू शुरू में कम्युनिकेशन करता है ना, उसके पास फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, बट सेंटेंस नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते. जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, हम उसको वर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं, ग्रामर सिखाना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट मोल्डिंग हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट होम शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. बच्चा रोने लगता है, छोटा बच्चा जो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो मम्मी उसको अपनी गोद में उठा के अंदर फीडिंग के लिए ले जाती है, बिकॉज शी नोज that the child is hungry. अब बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो जाता है and he is hungry but still doesn't know how to communicate. वहां पे वो टेंट्रम्स शुरू कर देता है. सो दिस इज द राइट एज, प्री स्कूल एज. 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, वहां से आप शुरू कर दीजिए बच्चे को सिखाना हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट. आपको करना क्या है? यू आर हंग्री, कैसे करना है? बाबू को भूख लगी है, तो कहा आप कैसे करेंगे? ऐसे पेट पे अपने हाथ रखो तो वो भी हाथ रखेगा. फिर वो कहेगा, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे मम्मा भूख लगी है, पेट पे हाथ रखेगा. वर्ड नहीं बोलेगा, पेट पे हाथ रखेगा. यू विल अंडरस्टैंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन हमने नहीं सिखाया, तो आई एम टेलिंग यू द कम्युनिटी विल or she will suffer throughout the life how to effectively communicate with not only the parents, not only the, I'll just open up the enable the waiting room.
Yeah, he will never be able to communicate with their boss, with their superiors, because we have not taught them actually what is required and how it is required. So child, बच्चे को प्री स्कूल में आप लोग कम्युनिकेशन सिखाना शुरू कर दीजिए. अगर if the child is not able to communicate, and if he is shy, leave it. It's okay. That is not a problem, because the most important age is to check whether he is communicating properly or not is the grade school. Class 1 में जब वो आ जाए, then you have effective communication with the class teachers, subject teachers, कि ये बच्चा कैसा है. मेरा बहुत shy है, बोलता नहीं है क्लास में. It is okay, but the way of communication, that is very much important. So what matters to them is effective communication skill. Next is consideration. You see, consideration मैंने पहले बोला था, high consideration, low consideration, small problem, big problem. You consider. Let the child consider. Say for example, consideration का मतलब ये नहीं है कि just only age or rank. Consideration ये भी है कि आप मैं तो देखता हूँ रोज 7 बजे के बाद पुण्यात्मा देखता हूँ. एक क्या है ये सीरियल आता है ना, भूल गया वो, होलकर फैमिली का, अहिल्या बाई. फिर काव्या भी देखता हूँ. अब काव्या में देखिए आप कि द सेम पर्सन हु वाज हर गुरु, ही वाज हिज इन लॉ, फादर इन लॉ आल्सो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने की वजह से देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द स्कूल, इन द कॉलेज, इन द academy. So talk to the children about, to your own children, about small problems. Say for example, क्योंकि काव्य में देखा था मैंने, she was very much worried about कि मेरा IAS बनने का एक major aim goal क्या है, that I want to improve the lives of the people around me whose needs are there, but they are not fulfilled, they are not heard properly, in the proper way, in the proper channel, in the proper place, in the by the proper person. छोटी प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ डिस्कस करिए. बेटा लाइट चली गई तो क्या करेंगे? बच्चा कहेगा माचिस जला लेंगे. वो दैट्स ग्रेट, अप्रिशिएट दिस. लेकिन माचिस तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, फिर क्या करेंगे? शो हिम अ कैंडल, शो हिम अ टॉर्च, and then ask them which will which will help them better. So छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स. बेटा अगर एक दिन हमारी आंटी नहीं आई काम करने वाली, तो फिर हम क्या करेंगे? वो नहीं बोलेगा, but you have to teach the value, so you can tell him, अच्छा मेरा बच्चा टेबल साफ करेगा, तब तक मम्मा बर्तन साफ करेगी. Right? Right. And then when he does it, try to appreciate it. वो कैडबरी की एक छोटी सी चॉकलेट, चॉकलेट नहीं, वो टॉफी टाइप की आती है, एक्लेयर्स, अपने पर्स में रखिए, घर में रखिए, दे दीजिए ना एक निकाल के. The way of appreciating. Once the child is appreciated for his good work, good deed, good task, good achievement, try to appreciate his little efforts. और ये धीरे धीरे करके, during these problem solving situations, you will find them that on the way to the bigger world, they will be able to solve the problem, the bigger problem, themselves. Try start doing this. कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने डबल डिजिट एज से पहले ये इसको सारी वैल्यूज दे दी, आई कैन टेल यू, टीन एज में, उसकी टीन एज में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी. देयर विल बी नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज करेज.
You see, developing courage is very difficult, and it is generally difficult because they will have a better, harder time developing courage if you do everything challenging your children. कोई भी बात नहीं है. You don't keep on challenging every time, but teach them face to face that you should face the fears and help them compare hard things with courage. You are on the fourth floor. बेटा किसी दिन अगर लाइट नहीं आ रही हो या लिफ्ट खराब हो जाए फिर क्या करेंगे? मम्मा तो उठा के नहीं ला सकती. मेरा बच्चा तो बॉर्नवीटा पीता है, दूध पीता है, हेवी है, फिर क्या करेंगे? चलो वन बाय वन स्टेप करके काउंटिंग भी करेंगे एंड चले चलेंगे. So give them an alternate also. Teach them to stand up for themselves. क्योंकि देखिए आज के वर्ल्ड में इतना चैलेंज, इतना कंपटीशन है that if they don't learn this particular thing, courage, to stand up for themselves, it will be very difficult for them in the later life to adjust to the changing environment. ऑफिस में जाएंगे, नए फेसेस देखेंगे, नए बिहेवियर्स देखेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा देखना. और जब आपने ये वैल्यूज डबल डिजिट एज से पहले, 10 साल से पहले उनके अंदर स्टिल कर दी, आई एम टेलिंग यू, दे विल नेवर फेस any challenge with any fear. They will decide positively कि इस challenge को मेरे को कैसे face करना है. How I have to face this fear or challenge, and then speak up. You teach them to speak up if they are not comfortable with a situation or with circumstances or with a condition or with a consequence also. This will help them to ask questions when they are confused in school as well. कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी कि इफ दिस इज राइट. आई टेल यू वन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन लाइफ. सन rises in the east. Generally we teach students sun rises in the east, but सोशल साइंस के टीचर ने मैम मेरे को ये बताया था कि इन द सोलर सिस्टम सन इज स्टेशनरी एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. अब क्या करेंगे आप? यस, यू आर राइट. We are moving towards the sun. That is why it seems to rise, but it is not rising. It is a misstatement. So teach them to speak up if they are not comfortable. Next is curiosity. This is very important. इसके ऊपर मेरा पूरा मॉड्यूल है. Why, how, when, where, ये बहुत जरूरी है. और अगर ये क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर आपने शुरू से नहीं डाली तो ये भी आगे चल के मुश्किल क्रिएट, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. संडे के दिन आप बोलिए ना बच्चे से, चलो बेटा आज चलेंगे हम लाल किला देखने. उसके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए. क्यों? कि बेटा वी मस्ट नो अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया, वी मस्ट नो अबाउट आवर हिस्ट्री. I don't think that we should introduce the philosophy to the children. Never. हम नॉमेनक्लेचर तो बताते हैं उनको. नॉमेनक्लेचर को उसको एग्जाम्पल के साथ सेट करेंगे, then they will start developing the concept. That is curiosity. Don't be too quick to solve any problem. Even if you have got a solution, don't solve immediately. है आपके पास solution, fine. Don't give them immediately. Just a moment, you just leave your authority and leave the child. आप बताओ आप कैसे सोचते हो? अगर हमारे घर में तो 2-3 कमरे हैं, अगर हमारे घर में 10 मेहमान आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? Leave it to them.
The whole authority and advisory and co-inquire with them. उनके साथ try to evaluate. डैडी छत के ऊपर बेड लगा देंगे, बेटा मच्छर ज्यादा होते हैं. ओ यस. जमीन पे लगा लेंगे, बेटा छिपकली का डर है. और keep on discussing. And once this problem is solved, then you and your child can learn a lot from bringing curiosity to the table. डाइनिंग टेबल पे लेके चलिए उसको क्यूरियोसिटी. बेटा आपने शाम को एक बात पूछी थी, मैंने आपसे बात पूछी थी कि 10 मेहमान आ जाए तो क्या करेंगे. कि डैडी आप बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही. कैन वी गो फॉर अ टेंट हाउस एंड फाइंड आउट फ्रॉम देयर इफ दे कैन हैव अ फोल्डिंग बेड विद अस. वे 3 बेड हमारे घर में है, 6 बेड अगर हमको फोल्डिंग बेड मिल जाए तो हम सोफा टेबल वगैरह सब एक साइड में कर दें, डाइनिंग टेबल एक साइड में कर दें, बेड्स यहाँ फोल्ड करके लगा देंगे रात को. ओ यस डैडी, दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया. बस खाना खाया, चलो लेट्स गो टू द टेंट हाउस. और नेक्स्ट मॉर्निंग और संडे, बट टेक इट टू द टेबल, डिस्कस विद होल फैमिली टुगेदर. चलिए नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन. Did you see this determination is generally misconstrued as being bold? Being bold means outgoing, adventurous. Outgoing means outspoken also. ये नहीं है. Determination means the will to encounter any situation with the resolve to try their best. मैं इस solution को 100% solve करूंगा. I will try to solve this problem with 100%. That is, I will try my best. Don't be helicopter parent. ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है चाइल्ड के डिटर्मिनेशन डेवलप करने के लिए. एवरीथिंग यू डू इन योर पावर, whatsoever you can do, so that your child doesn't struggle. नहीं होना चाहिए ये. Let them decide. Let them struggle. Let them fail. Because you unintentionally sacrifice the lessons they can learn from their own failure, their own struggle. ऊपर देखा है एक दिन आपने, अभी सर्दियों में पंखे बंद होने वाले हैं, ऊपर देखा, बेटा सोच रहे हैं कि सर्दियां आने से पहले पंखों को साफ करके बंद किया जाए, क्योंकि अब तो आगे पंखे चलेंगे नहीं तो इनको साफ कर दिया जाए. तो अगले संडे डन. यस डैडी डन. अब कैसे करें. डाइनिंग टेबल के ऊपर सेंटर टेबल के ऊपर एक स्टूल, स्टूल के ऊपर मैं, और स्टूल को आप अच्छे से पकड़ना, लेकिन कभी डैडी गिर गई तो फिर क्या होगा. फिर खर्चा हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. And don't put pressure on your child to do anything which he doesn't want to do. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर. Let them thrive in the wake of working through problems. Acknowledge their failures. No problem, बेटा, होता है सबके साथ. Failure and success, they are both friends. Just like day and night, light and darkness. They are friends. They are just like two sides of a river. They have to walk together, but they will never meet. जहां डार्क होगा वहां लाइट नहीं होगी, जहां लाइट होगी वहां डार्कनेस नहीं. जहां डे होगा वहां नाइट नहीं होगी, जहां नाइट होगा वहां डे नहीं. Try to make them understand this particular thing, that is, try to accept your failure, try to reflect upon what I did wrong, where I did wrong, and how can I improve them, and be a friend to your child by suggesting them the right way of doing the things. Rather than helicopter parenting, नहीं होगा.
नेक्स्ट इज एम्पैथी में, इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट second lesson of this is a parent can ingrain important lessons in an approachable and low stake way. Say for example, empathy में in vivo coaching क्या हो सकती है? आपके पड़ोस में कोई, your neighborhood में, your neighbors are sick. What you can guide your child, बेटा क्या करें, वो अंकल तो बीमार है. बच्चा भट से बोलेगा, उनके लिए खाना ले चले, ले चलो, that is good. लेकिन खाना तो मम्मा बना के ले जाएंगी, हम ले जाएंगे. आप ऐसा करो, ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, uncle get well soon and let us go to him, sit with him, talk to him. ठीक है ना? और फिर अंकल से मैं पूछूंगा, भाई साहब चाय पियेंगे? तो मैं बना देता हूँ. So this type empathy can be developed. This way you can develop the empathy in the child. ये मैंने आपको बहुत बता दिया. पॉजिटिविटी एक जरूर होनी चाहिए एम्पैथी में, और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर्स. तो पहले तो पेरेंट्स के साथ ही रिलेशन बच्चे का बनना चाहिए, देन ओनली दे विल बी एबल टू डेवलप एम्पैथी और रिलेशंस विद अदर्स. पहले आपके बच्चे के बीच में इतना बढ़िया होना चाहिए डेवलपमेंट, जो जितने भी वैल्यूज मैंने अब तक बताए हैं. लास्ट वन इज हैप्पीनेस. बी हैप्पी, रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव. चैलेंज जब भी आएगी, कभी भी आएगा, कम्युनिकेशन भी होगा, बी पॉजिटिव. If something is challenging, communicate the trials with your children and stay cheerful. मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, but at least I can smile. I can put a smile on my face. I cannot laugh. I know that with a headache, nobody can laugh, but at least you can put a cheerful smile on your face. That will positive. That will communicate the positivity in your values. और ये चीज सिखाने के लिए ना, हैप्पीनेस सिखाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं. बेटा आज आपने क्या क्या अच्छा काम किया. छोटा सा बच्चा बोलेगा, डैडी आज मैंने पूरा ग्लास दूध का एक बार में ही पी लिया. ओह दैट इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपने ताली बजा दी. और क्या अच्छा काम किया? डैडी आज मैंने शूज ना उतार के अपनी जगह पे रखे. ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. छोटी छोटी चीजों पे उसको अप्रिशिएट करेंगे, टू गेट दैट वेरी गुड from you, their parent, the child will always do good. And that is all about this webinar. Now, our upcoming webinar is on 12th October. Probably 13th I write, because 13th may be involved. That is only for one day, taming the tantrums. बच्चे करते हैं ना. I will stop sharing now. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए. Open up your videos, come up with your questions and let us discuss. मैं इस वीडियो का आपको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट भेजूंगा, बट टुमारो मॉर्निंग, एंड बाय टुमारो आफ्टरनून यू विल बी गेटिंग योर सर्टिफिकेट, और इवनिंग पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो बाय इवनिंग. अब आप देखिए, जितने नए लोग आए हैं यहाँ, नया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो पुराने हैं. रीता शर्मा जी भी कल थी, वंदना शर्मा भी कल थी, दो थी वंदना शर्मा, एक ही है, एक ही है. किरण जी भी थी कल, गीता जी भी थी, हिना जी भी थी, राइट. और ये हाँ, गीता जी भी थी कल. ऑल दोज ओनली 6 पर्सन. कल 8 थे, आज टुडे आर 6. Nobody has to ask anything. या अपने अपने मोबाइल पे लॉगिन करके यहाँ से निकल गए कि चलो जब तक चलेगा उसके बाद सर एंड कर देंगे,
फिर मिल जाएगा सारा मटेरियल नहीं सर, मटेरियल। इट्स नॉट लाइक दैट सर, वी आर हियरिंग यू। इट्स नॉट लाइक दैट। ये वंदना सी है 8 वाली या डी है? ये वंदना डी है, ड्राइंग वाली सर। डी है आपने, ड्राइंग। आई डोंट नो, आपने मुझे सी नाम दिया है, बट माय नेम आई एम रिकॉग्नाइज एज ए वंदना ड्राइंग। VSC 64 किसका है? वंदना शर्मा सर, VS64@gmail। सर एक मिनट, आई जस्ट चेक। नहीं मैंने आप। ना, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली सर। अच्छा अच्छा। मुझे याद नहीं है सर कोई मुझे। बात नहीं। और दूसरा है शर्मा वंदना 61203। आई थिंक वही मेरा सर। एक मिनट, आपका जो मेरे को आया हुआ ना, या आपने मुझे किया हुआ है, ये 61103। सिक्स वन शर्मा टू वंदना जीरो 61203। 203 है, ये 103 दिखा रहा मुझे। 61203। मेरे आपने पास मुझे जो शर्मा आप। वंदना से, हाँ, शर्मा वंदना। शर्मा वंदना 61203, ये आपका मेल आईडी आपने जो भेजा था मेरे ओके। पर यहाँ सर जो आपने मुझे, जिस पे आपने मुझे सर्टिफिकेट भेजा हुआ ना, को। हाँ। जिसमें मेरे आते हैं, उसका नंबर यही है, शर्मा वंदना 61103 एट मैं द रेट ऑफ एक जीमेल डॉट मैं 1 मिनट में इसको करेक्ट कर लेता हूँ, चेक करने के लिए एक बार इसको क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। कॉम। ठीक है ना सिक्स ये? वन वन जीरो थ्री हाँ ये मैंने कर लिया। हाँ जी सर, तो ठीक है। बाकी सब किरण जी को, गीता जी को, सबको, हिना जी को, सबको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं ना? हिना जी को तो खैर पिछला वाला भी नहीं मिला। सब तैयार है। अब कल आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सबको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ओके अब सर, ऑनेस्टी की ठीक है। बात आप ये बताइए वंदना जी, कि हाँ जितने जी। लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, डू दे हाँ जी। डिजर्व डू दे डिजर्व सर्टिफिकेट? What to say? They all are my colleagues, sir. What to say? अब ये But हाँ, अब यस भी नहीं बोल honestly, तो सकते। honestly, I'll tell you, sir. Honestly, हाँ, I'll tell you. Really, they people don't deserve those who didn't attend the seminars. No, क्योंकि सेमिनार्स है ना? उन्होंने ज्वाइन किया था सिर्फ, कि इतने सस्ते में सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे तो पैसा कलेक्ट करना ही नहीं है, ये तो पैसा मेरे बच्चों को जाएगा। बच्चे मीन्स दोज पर्संस हु आर वर्किंग विद मी, दे आर बीटेक स्टूडेंट्स, ये सब उनको चला जाता है। जितना काम आएगा कम जाएगा, ज्यादा आएगा ज्यादा जाएगा। बट फॉर गॉड सेक आई एम टेलिंग यू, अभी भी उनको एटलीस्ट 40,000 रुपए महीने के मैं दे देता हूँ। Okay, okay, दस sir. दस हजार Like, है, 4 बच्चे हैं, सबको दे hmm. देता हूँ। भैया घर वाले पैसे जो है जमा करके रखो, 5 साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाओगे या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, एटलीस्ट एट दैट टाइम अपना बिजनेस शुरू करो, या नौकरी करो, या बाइक लो, जो भी करना है करना। हाँ जी, मेरे हाँ जी, मैडम मेरा काम हो जाता है सस्ते में, उनका हाँ काम जी, हो जाता है फ्री में, पेरेंट्स के पैसे बचते हैं। और सबसे यस बड़ा सर, है कि वर्क कल्चर बच्चों के अंदर आ जाता है, कि यस व्हाट इज सर, द वैल्यू ऑफ वर्क। यस सर, हाँ, पैसा बिल्कुल तो बात दुनिया सही ने है। कमाना है, दुनिया। दुनिया अभी में आप कमाना देखो ना, बॉम्बे में एक बंदे का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। ही इज सम संदीप मेहता, करोड़पति बैगर, है। हाँ जी, 7 करोड़ है उसके पास, लेकिन आज भी ठीक वो है। भीख मांगता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो कहता आई है हैव नॉट किस सीन। था उसमें। ओके। नहीं, मेरा मेरा इंटरफेरेंस हर जगह पे रहता है। अब जाके सीरियल देखूंगा, 9:30 बजे तक सो जाऊंगा, 4:30 बजे फिर उठूंगा, फिर काम शुरू अगले हफ्ते का। टेमिंग द टेंशन, try to हाँ जी। join if you really think so that you can help your child to control their tantrums। हम्म, बर्तन फेंक दिए, दूध का गिलास फेंक दिया, जमीन पे लेट गए, नहीं होता पार्टी में चले गए, मम्मा ये खाना ये खाना ये खाना, और यू फील यस। सो मच एम्बेरेस्ड कि अब मैं कहाँ जाऊं। वेरी मच राइट सर। वो टेंट्रम्स ग्रैंड चिल्ड्रन के भी, मैंने तो अपने बच्चे का, अपने पोते का टेंट्रम सीख ठीक कर दिए, बहुत सारी ठीक कर दिए, अभी 2-4 रह गए। तो ये खाने के आजकल लिए। के बच्चों को बिल्कुल दे सर, इनको काउंसलिंग रिक्वायर्ड है बच्चों को आजकल के। और ये सबसे बड़ी बात वंदना जी मैंने बोली है आपको, कि प्री स्कूल से अगर आप ये शुरू कर देंगे तो आगे जाके आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं है। यस सर। रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात जब हम करते हैं,
तो आजकल हुँ, ज्वाइंट फैमिलीज है कितनी? वेरी लिमिटेड। हुँ। वेरी लिमिटेड सर, न्यूक्लियर फैमिली रह गई है आजकल। और वजह नौकरी नहीं है इसकी, वजह हुँ, ये है कि द बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड दैट वाज नॉट डेवलप्ड एट द अर्ली एज, राइट सर। और वो बॉन्ड आज भी मिसिंग है। 21 साल के बच्चे से आप कहाँ जा रहे हो, मम्मा अब तो छोड़ो यार पीछे। नाउ आई हुँ, एम ए ग्रोन अप यंग मैन। यंग मैन का मतलब है कि यू विल डू व्हाटसएवर यू वांट। ओके फाइन, लीव माय प्लेस, मैंने तो बोल दिया था अपने लड़के को, लीव माय प्लेस, टेक रूम ऑन रेंट, अपना अरेंजमेंट अपने आप करो, पैसे अच्छे खासे 40-45 हजार मिल रहे हैं, ट्राई 1 मंथ, अच्छा लगे तो स्टे ओवर देयर, शादी हो तो बुला लेना, नहीं चाहो तो मत बुलाना। बट अगर अच्छा न लगे तो बिना हिचक फिर वापस आ जाना, एंड यू विल नॉट बिलीव विद इन 10 days ही केम बैक। नहीं पापा आई एम रियली सॉरी। करना पड़ता है मैम, कभी कभी हमको करना पड़ता है, पेरेंटिंग के यस सर। लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। यस सर, बिल्कुल। प्रोबेबली मेरी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं पीछे गड़बड़ हो गई होगी, बड़ा हो गया हूं तो नहीं हमारा बाप कोई हो गया। सर। ट्राई टू टीच देम एज अर्ली एज पॉसिबल एम्पैथी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग आप सिखाना शुरू कर दीजिए, फिर कम्युनिकेशन पे आ जाइए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। एक से शुरू करो आप, यस। सिर्फ एक से, एक के बाद दूसरा आ जाएगा तो दोनों को रिपीट करो, फिर तीसरा आ जाएगा, तीनों को रिपीट करो, फिर चौथा आ जाएगा, चौथे को रिपीट करो। मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, इसमें 12-15 के करीब है वैल्यूज, जो बेसिक कोर वैल्यूज है जो होनी ही चाहिए। ठीक है। एंड देन दे विल, यू विल सी a strong man or strong woman coming up. Okay, ladies and gentlemen, have a nice dinner and nice थैंक sleep. यू सर। See you थैंक यू सर। again next time. गुड इवनिंग सर। Good बाय night, सर। ma'am. Good night. Thank गुड you नाइट very much. सर।